ریلیف کا وعدہ وفا نہ ہوا۔ وزیر اعظم نے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کی خوشخبری سنائی، کچھ دیر بعد لیوی بڑھا کر قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، شام کو قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر بولے، قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیں گے، رقم بلوچستان میں N25 شاہراہ کو 2 رویہ کرنے پر خرچ کریں گے۔ اس خونی سڑک نے 2000 لوگوں کو نگل لیا ہے، کچھی کینال کا منصوبہ بھی انہی رقوم سے مکمل کریں گے۔ بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 7 روپے 1 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا، بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ کیا دشمن کا یہ خیال ہے کہ مٹی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں، جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اوورسیز کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ یقین دلاتا ہوں آپ میرے لیے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے، جس پر ہمیں ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ مزید کہا، کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جو آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بے پناہ کاوشیں کر رہے ہیں، جتنی بھی ہم مراد آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، بخدا وہ کم ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولیات کی بارش کر دی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان۔ کہا، اسلام آباد میں خصوصی عدالتیں قائم کر دیں، دیگر صوبوں میں کام جاری ہے۔ ویڈیو لنک پر حاضری کی سہولیات دی جائیں گی۔ تمام یونیورسٹیز میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5% کوٹا مختص۔ میڈیکل کالجز میں اوورسیز کا کوٹا 15% ہوگا۔ میرپور میں ایئرپورٹ بنانے کا بھی اعلان۔ مزید بولے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع محفوظ ہے۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پچھلے دور میں سنگین غلطیاں کی گئیں۔ اپنی سیاست کو بچانے اور ریاست کو تباہ کرنے کے لیے آخری حد تک چلے گئے۔ IMF سے پہلے معاہدہ کیا، پھر توڑا اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ 2 مرتبہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تیسری مرتبہ میں نے منسٹر IT اور سیکٹری IT کے ذمہ لگایا کہ وہ پورٹل بنائیں گے اور اس کے ذریعے اپلیکیشنز ریسیو کی جائیں گی۔ آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں۔ جب تک یوتھ اور تجربہ اکٹھے نہیں ملیں گے، اس میں ترقی کا فقدان رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شعبہ زراعت کی استعداد بڑھانے کے لیے پرعزم 1000 زرعی گریجویٹس کو اعلیٰ تربیت کے لیے اسکالرشپ پر چین بھیجنے کا منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں 300 طلباء چین بھیجنے کے مرحلے کی تقریب کا انعقاد ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج شعبہ زراعت کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ پاکستان چین سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے تجربات سے استفادہ کرے گا۔ پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرنے پر چین کی حکومت کے مشکور ہیں۔ چینی سفیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور چین کے تعلقات درست سمت میں تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में ज़लज़ले के झटके। चित्राल, शांगला, बडग्राम समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में लोग खौफ ज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 110 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। झटके आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भी महसूस किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्मोक फ्री पंजाब के लिए अहसन इक़दाम। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए माहौलियाती फोर्स कायम कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत, सलामी पेश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इन्वायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम और एमिशन टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। जांच पड़ताल के बाद वज़ीर आला की गाड़ी को पहला ETS स्टिकर लगा दिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरियम नवाज के अज़्म की अक्कास है। 100 बिलियन का फंड पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए मुख्तस किया गया और 10 बिलियन का फंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया गया। ये ना सिर्फ तारीखी इन्वेस्टमेंट है बल्कि ये इन्वेस्टमेंट पंजाब के लोगों के लिए है, उनकी ज़िंदगियों के लिए है। मैंने ऐसी चीफ मिनिस्टर नहीं देखी जिसका फोकस जहां वो तमाम चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है लोगों को, वहाँ उनका फोकस इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और एयर क्वालिटी के ऊपर हो। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने पुरवकार तकरीब में जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। जस्टिस अली बाकर नजफी इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। वज़ारत कानून ने जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती का गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया था। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मुस्तकिल नशिस्तों में इजाफे की मुखालफत। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने गैर रस्मी इजलास से खिताब में कहा, नए मुस्तकिल अरकान की शमूलियत महज नई मरात याफ्ता अशराफिया की तख्लीक होगी। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ानी चाहिए। चंद ममालिक को मुस्तकिल नुमाइंदगी देकर बाकी को महरूम करना कबूल नहीं। बदलते आलमी हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर है। हुकूमती दरखास्त मंजूर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में बड़ी कमी। बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। हुकूमती दरखास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया। हुकूमत गंदम का रेट फौरी तौर पर मुकर्रर करे, किसानों को उनका हक दे। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं, हम कोई तसादुम नहीं चाहते, अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत के मुमकिना किसान पैकेज के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो पूरे मुल्क में नया एहतजाजी मरहला शुरू होगा। किसानों का इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और पुरअमन एहतजाज काबिल सताइश है। पाकिस्तान में सोना तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। 1 तोला सोने की कीमत 3,40,000 रुपए के लगभग। गरीब तो दरकिनार, मुतवस्सित तबके के लिए भी बेटियों को शादी पर सोने के जेवरात देना मुश्किल हो गया। वालिदैन परेशान, बेटी के हाथ कैसे पीले करें। नौजवान तबके की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। सोने के तोहफे लेने और देने की कीमत रस्मों को मुस्तरद करने लगी। दूसरी जानिब महंगे सोने के बायस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग भी बढ़ गई। खसूसी रिपोर्ट शामिल होंगी आज के। कराची में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। आज पारा 37 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहरों में भी सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। दर्जा हरारत में इजाफे से शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स फटने का खदशा। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की भी पेशगोई। सिंध और पंजाब में आंधियां चलने का भी इम्कान।
हेलमेट पहनो, महफूज रहो। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों का भी फौरी चालान किया जाए। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर मोटरकैब रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। शारा फैसल, आवारी लाइट सिग्नल से मादाम अपार्टमेंट, आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक दोनों सतह के रिक्शे नहीं चलेंगे। कमिश्नर कराची ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1+2 और 1+4 रिक्शों पर पाबंदी DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर लगाई गई। 2 माह की पाबंदी का इत्तलाक 14 जून तक रहेगा। लाहौर में मोटरवे M4 अमीनपुर के करीब ट्रक की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर, मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद। मोटरवे पुलिस अफसरान रोड यूजर्स को सड़क किनारे ब्रीफिंग दे रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर नींद में था। एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बाद अस्पताल इंतजामिया ने एक बच्चा गायब कर दिया। मुतासरा खानदान का अस्पताल के गेट पर एहतजाज। वर्सा का कहना है 2 बच्चों की पैदाइश हुई मगर इंतजामिया ने एक बच्चा गायब कर दिया। हमारे पास रोहड़ी समेत मुख्तलिफ अस्पतालों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स मौजूद हैं। रिपोर्ट्स में 2 बच्चों की निशानदही की गई। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए पाक बहरिया का एक और अहम संगे मील। और माड़ा में कायम पाक बहरिया के अस्पताल PNS दरमान जहाँ में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह। मेहमान खसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब में खिताब में कहा, PNS दरमान जहाँ जदीद तिबी सहूलियात के साथ मकामी अफराद की खिदमत जारी रखेगा। नए ब्लॉक में जदीद ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, ICU, गायनी यूनिट, शोबा इतफाल और नौज़ायदा बच्चों के लिए ICU शामिल। और तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर वार। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारे खरीदने से रोक दिया। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी को $50 अरब का नुकसान। अमेरिका का चीन के साथ बातचीत का इंदिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट कहती हैं, तिजारती जंग की बॉल चीन के कोर्ट में है। चीन को अमेरिका के साथ मुआहिदे की जरूरत है। सदर ट्रंप कॉलेज कैंपस में यहूद दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को माफी मांगनी चाहिए।